وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کن بے حد شکر و احسان یم رب ذوالجلال اس بھی اکہ ساتھ نصیحت بابرکت مجلس میں شریک سپدن توفیق عنایت کور بیسن بے شمار درود و سلام برسات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تام. پتمس درسس مز کریو اسہ امہ آیہ مبارکہ یس میں تہ برونٹھ تلاوت کر امیک گۄڈنیُک حصہ تمچ تشریح تو تفسیر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سند فضل و احسان ست کرو اس آز امہ آیہ مبارکہ زن دویم حصہ سہ مکمل کرنچ کوشش. گۄڈنِکِس حصس مز پڑھو اسہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الخمر والمیسر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں دریافت کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے. واثمہما اکبر من نفعہما لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے. بہرحال یہ سہ گۄڈنیُک حصہ یُس زن اسہِ رات مکمل کوٚر یتھ منٛز زن اللہ تبارک و تعالیٰ ہن مسلمانن یہ ترغیب دِژ کہ شراب تو جوا یُس زن چھِ بہرحال اگرچہ ان میں وقتی طور پر کچھ منافع ہے کچھ فائدہ ہے مگر جو اس کا نقصان اور جو اس میں گناہ ہے وہ اس فائدے سے بڑا ہوا ہے اور زیادہ ہے. اس لیے ترغیب آئے مومنن دن کہ جوا اور شراب یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور میں کرے تہ رات عرض کہ یہ میں آیت سۭتۍ گوٚو نہٕ جوا اور شراب قطعی طور پر حرام کینٛہہ بلکہ تدریجاً آو شراب اور جوا اس کو درجہ بہ درجہ بہرحال حرام کیا گیا. اس کے بعد نماز کے اوقات میں اس کو پینا منع کیا گیا اور آخر کار اس کو قطعی طور پر استعمال کرنے کی ممانعت اور اس کی حرمت بہرحال اس میں آیات نازل ہوئی. آیات یا ام آیت ٹکڑ پتہ بیاکھ اکھ سوال یُس زن مسلمانوں کریو. البتہ اس سوال کو پڑھنے سے پہلے دو باتیں میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں پچھلی آیت کے بارے میں. سو یہ کہ مسلمان آو ون کہ شراب اور جوا اس میں کچھ نفع بخش کچھ چیزیں بھی ہیں یا ات مجھ کما بیش کم زیادہ کیا نفع تھی اور ان کی نشاندہی بھی ہوئی تھی. مثال کے طور پر وقتی طور پر کن سات اس سے علاج کا کام لیا جاتا ہے. وقتی طور پر اکس انسانس گرمی محسوس گژھان. وقتی طور پر اخ انسان ریلیکسڈ فیل کران اور وقتی طور پر ام سن اخ فرحت یا اخ مسرت حاصل گژھان. مگر یہ نفع جو ہے یہ بالکل کم اور بالکل حقیر ہے
जो इनके मुफसिदात हैं या अमिक फसाद बर्पा गसन अम सत वो तो बहुत ज्यादा बढ़कर हैं। अम सत उलमाओं कोरमुत अख इस्तिदलाल अख फिक़ही इस्तिदलाल अथ वनान कि कह ति सु चीज यथ मज ज़रर ते आसि और जिससे मुनाफा भी हासिल होता हो, इसका उसूल भी यही है कि अगर अमुक ज़रर या अमुक नुकसान सु ज्यादा कम खोत नफा खोत तो उस चीज से बचना एक मुसलमान के लिए लाजिम है। मिसाल के तौर पर अख इंसान गसन कुन मजलिस मज और उससे ये तवक्का है कि मैं वहां से इल्म की 2-4 बातें सीख लूंगा, मगर वहां गीबत भी होती है, वहां लोगों के ऐब भी टटोले जाते हैं, तो ऐसी मजलिस में जाना भी हराम है, क्योंकि वहां पर नफा के साथ साथ इसको ज़रर पहुंचने का भी एहतिमाल है। वो तमाम तुम चीज यमन मज नफा आस मगर नफा सत नुकसान और नुकसान आस ज्यादा एज कंपेयर टू नफा, बहरहाल ऐसी चीजों से बचना मुसलमान के लिए लाजिम है इस कुरान की आयत की रूह से। वो पढ़ो कल इंशाअल्लाह मुस्तान असी ब्याक सवाल कि मुशरिकस सत खानदर कर या निकाह कर यह जायज क्या नाजायज। बहरहाल कुरान कहता है कि सर्री तौर पर नाजायज है। तथ वजह अल्लाह तबारक तआला दिवन यह तिकाज यह हेकु तुम मायल कर पन्निस दीनस कुन, हालांकि वहां से नफा भी हासिल हो सकता है, उससे पैसा वसूल होगा, अमसुन इजन जायदाद तमिम माली बंद, मगर अल्लाह ने कहा कि इससे आपको यह नुकसान हो सकता है कि यह कुछ बेदीन की बनाए, तो इसीलिए वहां पर भी इस चीज को हराम किया गया, क्योंकि एक तरफ से अगर आपको नफा मिलेगा मगर जो इसका नुकसान है वो ज्यादा बड़ा है, इसलिए आप तक ममानियत करना। एक बात दम कत अहम कत अत मज मे वो तुम रात मैंने आपके सामने कुछ डाटा रखा था कि कूता पोस दुनिया मज खर्च गसन कत पे शराबस पे। हालांकि मैंने आपको WHO के वो डाटा दिए थे कि लगभग 1728 बिलियन US एनुअली खर्च गसन कत पे इस शराब नोशी पर, और ये सिर्फ वो पैसा है जो शराब खरीदने और बेचने पर खर्च होता है। इससे अलावा यम जन कवानीनी अत मतलब पेचीदगियां पर मिसाल के तौर पर दंगा फसाद कहीं पर हो गया, फिर उसको निपटाने के लिए जो पैसा लगता है, इसी तरह से इससे जो बीमारियां होती है, मिसाल के तौर पर लिवर कायरोसिस गसन, ब्लड प्रेशर गसन, उन पर कितना पैसा खर्च होता है वो अलग से है। वो यूता ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा इसमें इस्म है, ठीक है। अवल अल्लाह ताला इस्मुहुमा अकबरो मिन नफीमा, इसके नफा से ज्यादा इसका क्या है नुकसान है। बहरहाल मैंने बॉस पढ़न जर्मनी अब डॉक्टर आप जिसकी मैंने रिपोर्ट आपको कल कही थी, तम पन्नी किताब में लिखमुत कि अगर शराब इसकी तिजारत को या इसकी स्मगलिंग को या इसके जो बेचने को अगर 50% कम करो, यानी अगर हम 50% करो शराब दुनिया में कम, तो इसके नतीजे में हमें 50% अस्पताल बंद करने पड़ेंगे और 50% अदालतें बंद करनी पड़ेंगी और 50% पुलिस थाने ये बंद करने पड़ेंगे। यानी यूता पोस है कि कौमुक बचत कि 50% मरीज अस्पताल, 50% पुलिस थान और 50% अदालत, क्योंकि अक्सर झगड़े इसी की वजह से होते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा था व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इमा, इसका गुनाह, इसकी खराबियां इसके नफा से बढ़कर है। दयम कत यकुन जन तुहज तवज्जो मबजूल करन यसन इस आयत की रूह से, हालांकि वो तो इसकी तफसीर में नहीं है, मगर बुशत व्यसन ताकि हम भी इसके बारे में थोड़ा बहुत गसो थोड़ा बहुत एक्टिवेट हूं, ताकि हम भी इस मंशात मुंशियात इसकी वबा आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम को अपनी लपेट में ले रही है। मैं उनका आज दिश और ये मनशियात का जो कारोबार है, मनशियात की फालात, ये इतना संगीन है कि आपके साथ चलने वाला आदमी भी इसका शिकार हो सकता है और आपको पता नहीं होगा। बहरहाल वन शीवन यानी ये जो सेंसस है 1997 में वो सेंसस मैंने कल कहा था, उसमें कहा गया था 27% ऑफ यूथ बिटवीन 15 to 35 ईयर्स ऑफ एज वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसमें मुलविस हैं, इस अल्कोहल में और ड्रग्स में। लेकिन आज आज WHO रिपोर्ट तुम वन 1500 टाइम्स हसा गोमुत इंक्रीज, यानी 1500% इंक्रीज गोमुत। अब वो 0.5% गो डबल, लेकिन 1500 टाइम्स
गो मतलब गो यूता गंद बढ़ोमुत। गो आज करोड़ों में आज हमारी इस पूरी दुनिया में ड्रगिस्ट और अल्कोहलिस्ट वो हमारे माशरे में है। बहरहाल इसके क्या भला आप तहकीक गोमुच, इसकी तहकीक जब की गई कि अमा 15 वुहर पे 27 वुहर यानी जवान तबक खुसूसन जो कॉलेजों में है और जो खुसूसन कहां पर है तालीम से वाबस्त, जब इसकी एक सेंसस की गई तहकीक करने, तो बुनियादी 2 वजह इसकी सामने आ गई कि 2 वजह बिलखसूस। वजह सारे खुद बोड़ वजह उसको कहा गया आइसोलेशन। आइसोलेशन गो आम तौर पर तुम बच्चे गसन ड्रग्सन मज इन्वॉल्व, आम तौर पर तुम बच्चे गसन अल्कोहलस मज इन्वॉल्व जो अपने घर में आइसोलेट किए जाते हैं। यमन बच्चन मोल मोज पूर वक्त दिवन कहें, यानी जिनको माँ बाप यह सही टाइम घरस मज दिवन कह, या यम बिल्कुल तीता आसन कि मालिस माज वक्त उमन खतर। आम तौर पर यह सेंसस सेंसस गोमुत, डॉक्टर हिंद बच्चे, पुलिस वालों के बच्चे और ऐसे प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए बच्चे मज घर वापस उनके बच्चे सबसे ज्यादा मुलविस है किन में, इस ड्रग्स और अल्कोहल में। सारे खुद सेंसस मुताबिक आमुत क्यूर्स फॉर दिस अल्कोहल कम करने खतर या ड्रग्स, उसका सबसे बेहतरीन इलाज निकाला गया है कि फैमिली में मोल मोज कम से कम 1 से 1.5 घंटा वो अपने बच्चों के लिए रखना चाहिए। यानी मोबाइल त्रयित सोरे क्या पन प्रोफेशनल त्रयित पानी मसरूफियत त्रयित गैस कम से कम 1 to 1.5 घंटे टाइम कमिस सारा कर, ताकि उसको ये आइसोलेशन की ये फील गमिस कि बस घरस में अलाव मे का प्रेशर वोल, इसकी वजह से उसमें डिप्रेशन पैदा होता है। डिप्रेशन कोई नतीज नीरान कि यह क्या कर, ये फिर इन चीजों की तरफ मुलविस। इसलिए एस्पेक्ट और ये इस्लामी तरीक कि मोल मोज गि बिल्कुल टाइम पन्न बच्चन हिंद तरबियत खतर मुशक्कस थाउन, उनके साथ खेले, उनके साथ वक्त गुजारे, उनके साथ बैठे, हत्ता कि पढ़नानुक माहौल यह बुनियादी तौर पर कमिस सती मालिस वजह। दूसरी वजह जो इस ड्रग्स फॉल आउट वो कहा गया है कि दुनिया में अजीब लत पेमज, हर कोई आसानी के साथ पैसा कमाना चाहता है। प्रत्येक का इंसान वैसा आसानी से क्या कमाऊं पोस। अब जब पैसा नहीं मिलता है तो लोग किसके शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इस डिप्रेशन की वजह से वो फिर किस में मुलविस हो जाते हैं, इन ड्रग्स में मुलविस हो जाते हैं। बहरहाल ये पे मैं जिम्मन अम सब याद तिकाज अत मज सी जिम्मेदारी बनन जो हमारी आइंदा नस्ल है या नौ नस्ल हमारे बच्चे भी बहरहाल इस आजुक माहौल इसमें ये जाते हैं, वहां से ये वापस लौट के आते हैं। हो सकता है अल्लाह ताला बचाए ये भी इसका शिकार हो सकते हैं। इस नौसत से बचने के लिए सारे खुद बेहतरीन चीज यह कि पन्न बच्चन सत टाइम दिन, पन्न बच्चन सत गिंदन, पन्न बच्चन हेचनाव, पन्न बच्चन सत वक्त दिन, ताकि वो समझे कि माँ बाप मेरे साथ टाइम देते हैं और वो मेरे राजों के साथ और मेरे भेदों के साथ वो बिल्कुल वाकिफ हैं। दम कह अहम आयत के तनाजुरस मज वो ये है, तारीख गवाह सीरत की किताबों को अगर आप पढ़ोगे यम सातन जन ये शराब हराम गो, ये अलग तक हराम नहीं हुई, ये पढ़ना रात पहले जहन साजी की गई, फिर कहा गया कि नमाजों के वक्त शराब को मत पियो, फिर आखिरी ऐलान हुआ कि अब शराब हराम हो गई है। और सीरत की किताबों में लिखा है कि यम सातन ये मुनादी गई कि शराब हसा को हराम। हजरत अब्दुल्ला इब्न जर्राह अबू उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम में से अगर किसी ने ये जाम अपने होंठों तक भी पहुंचाया था तो उसने भी इस जाम को क्या फेंक दिया। इतने पहुंचनस अगर का शख्स अगर उसके घर में कोई जाम या मटका भरा हुआ था शराब का तो उस मटके को भी हमने क्या फोड़ दिया। बल्कि रवायत मुशाहमद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमान कि ये हुक्म को मुनादी गई, मदीने की गलियों में शराब इस तरह बहने लगी जिस तरह तेज मूसलाधार बारिश में पानी बहता है, यानी यूता ज्यादा शराब बहो। अब इसी के साथ रवायत मुशाहमद और सहाबी आगुमत वो शाम और मिस्र का सफर करके आया था, और बड़ी शराब उन्मुत, क्योंकि सबसे बेहतरीन और भला कारोबार किसका था,
अत बिक्री थी खुद ये सरहदस पे वो दिल्ली मदीने पाक से आओ तो किसी ने मुनादी ने इसको कहा कि शराब हराम हो गई है, ये गो क्या हराम। अब वो दौड़ता हुआ ये अपना सारा माल लेकर आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और अर्ज को या रसूलुल्लाह बह क्या कर मालस कुल पूंजी हाथ में लगोमस कत मज इस शराब में। तो रसूलुल्लाह ने कहा अब तो यह हराम हो गया है। तारीख से गवाह सीरत की किताब में लिखा है उस शख्स ने एक आसा अपना लिया या डंडा हर मटके को फोड़ता गया रसूलुल्लाह बोल के और पतन अर्ज या रसूलुल्लाह क्या आप मुझसे राजी है, क्या तैश्वर मेनिश राजी। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सहाबी की इस अदा से बहुत खुश हुए। वंश में ये गर्ज अब देखिए इस्लामी सियासत और जो आज की सियासत है इसमें कितना बड़ा फर्क है। आज मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जराया से तमाम लोगों तक कानून को पहुंचाया जाता है। आज रस्लो रसायन मीडिया है ज्यादा तरीक। आज अगर हुकूमत कोई कानून बनाती है आम आदमी तक पहुंचने में उसमें शक्ल भी नहीं लगता है। सोशल मीडिया पे थ्रो, टीवी पे थ्रो, अखबार को, रेडियो पे को, हर एक आदमी जानता है कि अब ये चीज या ये कानून ऐसा बनो, लेकिन कानून शिकनी जो है वो फिर भी चालू है। सच एम्पैथी क्या। लेकिन वहां पर देखिए सिर्फ एक मुनादी हो गई कि शराब हराम हो गई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर वनन यूता शराब द्रास जैसे मौसलाधार बारिश में पानी जमा। और रिवायत में आता है कि 1.5-2 साल तक जब भी मदीना में बारिश होती थी इस हुक्म के बाद, तो जब बारिश होती थी पूरे मदीने की मिट्टी जो है उसमें शराब की बू आती थी। क्या तूत शराब अंडेल मुतकमो साहब से इमो। अब देखिए इस सियासत और इस सियासत में कितना फर्क है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि वहां कानून तो बनाया गया मगर कानून से पहले वहां पर खुदा का खौफ पहले लोगों में और उनके जहनों में उजागर किया गया। आज भी अगर दुनिया काश खुदा खौफ दिन खुदा दीन तस्वर दिन फिर कानून बनाया जाता, आप देखते कि ये कानून बनाने तीज जरूरत क्या बस मुनादी होती तो फिर कानून शिकनी गसन। ये इंसानी या इस्लामी सियासत का खुसूसी इम्तियाज कि वहां पहले आखिरत का तस्वर जहन साजी की जाती है फिर कानून बनाया जाता है। लेकिन इसमें यहां कानून बनाया जाता है जहन साजी पर कोई क्या सवाल या कोई उस पर काम नहीं होता है। आज कानून पर स्मोकिंग इट इज इंजूरियस लिखित तो बना पोस्टर और लिखा भी काम में अस्पताल बोर्ड नहीं किया, स्कूल बोर्ड नहीं किया, लेकिन कोई अमल दरामद इस पर होता है। अगरचे जुर्माना भी आयद होता है मगर कोई अमल दरामद है ना। ये इन वजह से क्योंकि जहन साजी नहीं हुई है। काश पहले जहन साजी होती फिर कानून बनाया जाता। आप देखते कि इन कवानीन का कितना असर लोगों पर। बहरहाल ये खुसूसी फर्क इस्लामी सियासत और आज की नाम नहाद जमहूरी सियासत। अम पे अल्लाह तबारक तआला फरमान अथ आयतस मज व यसअलूनका माज़ा युनफिकून यम गो अमिक असर। अच्छा इसी में यह भी आता है कि तुमन चीजन यमन में नफा आस और नुकसान आस। नफा तो नुकसान या चीज उसको छोड़ देना ही बेहतर है क्योंकि हो सकता है कि नुकसान आपको ज्यादा पहुंचे नफा कम। तो इसमें सोशल मीडिया का भी आज इस्तेमाल होता है। उलमा ने इससे भी लिखा है आमतौर पर सोशल मीडिया पर आज वुचन मुख्तलिफ किस्म क्लिप्स मुख्तलिफ किस्म तकारीर हमें पता ही नहीं होता कि यह सही है या गलत है। तो उलमा ने इस जिम्मन में इसको भी लाया है कि जो शख्स इसमें डिस्टिंग्विश या फर्क नहीं कर सकता कि यह सही है या गलत, उसके लिए बराबर इसी हुक्म में है कि इसमें क्या है कि वह मनाफिउ अकबर मिन नफ़इहिमा, इसकी बुराइयां इसकी जो खबासतें हैं वो इसके नफा से बढ़। ये एक इंसान को बेदीन और मुल्हिद भी बना सकते हैं। वह अगर किसी इंसान दीन सही इल्म सुन के उसके लिए भी यही हुक्म है कि उसको इससे बाज रहना चाहिए। बल्कि आज फुकहा टर्म अख्तलिश में तुम वनन कि हसूल मनफात यजन इसको छोड़ दिया जाएगा किस पर मुजरे यजन क्योंकि ये जो मजरत है मजरत से बचने के लिए कभी कभी नफा को भी छोड़ना पड़ता है। तो ये इस उसूल के साथ यजन सोशल मीडिया का इस्तेमाल उस पर भी यही उसूल इतलाक होगा। जो शख्स इसकी मजरतों से बच सकता है उसी के लिए हलाल। अब अगर बूझमत आजन आज शेखुल इस्लाम जिसको कहा जाता है मौलाना तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह तुम दीन इस्लामिक सारे खुद बड़ इस्लामी मुफ्ती मान पाकिस्तान की, उनका यह बाज़ाब्ता फतवा है कि जो शख्स एंड्रॉइड फोन का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता है और उसे पता हो कि यह फोन मुझे किस में फितने में मुब्तला कर सकता है,
उसके लिए एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल शरई तौर पर हराम है। क्यों? तिकाज इस्मुमा अकबर मिन नफिमा, उस आदमी के लिए इसकी बुराइयां, इसकी खबासतें इसके नफा से ज्यादा है। बहरहाल यह में ज़िमनी कथ के आत्म, क्योंकि इनका ताल्लुक हमारे समाज और हमारी इंफरादी जिंदगी के साथ है। और अत यह कि पन्न बचन से तरबियत से उनके साथ यह इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है प्रोडक्टिव टाइम। वी शुड स्पेंड सम प्रोडक्टिव टाइम विथ आवर किड्स एंड किड्स। वयस अदून का मौजा युनफिकून, या रसूलुल्लाह क्या सवाल कर कि क्या करो खर्च। ये सवाल पहले भी आया, मगर वहां क्या आया था? हम कहां खर्च करें। यहां पर सवाल हुआ कि हम क्या खर्च करें। तो असल कुलिल अफू, तो रसूलुल्लाह को हुक्म हुआ, या रसूल इनसे कह दीजिए अफू, जो कुछ जरूरत से ज्यादा है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। यानी यूता जरूरत को ज्यादा सह करो अल्लाह ताला बात में खर्च। इससे दो बातें पता चलती, एक ये कि पहले इंसान अपनी जरूरतें पूरी करे, फिर वो लोगों में तकसीम करे। यानी ऐसा ना हो कि वो खुद फकीर हो, पर अयाल फाके, और इसी तरह अयाल उसका तरस रहा हो, और यह साहिब हातम ताई बनोमुत या नबर खर्चा। ये इस्लामी असूल नहीं है। इस्लामी असूल क्या? कुल जरूरत से जाए, पहले अपनी जरूरतें पूरी हो जाए। इतने पहुंचनस कोई शख्स है, उसके जिम्मे कागज है, इसको तो पहले किसकी जरूरत है? कागज। अब ये बना है हातम ता, ये कर सखावत, ये सदक़ा कर, खैरात कर। इस्लाम इस बात की हमें इजाजत, पहले उसूल है कि कर्ज को अदा करो, बाद में अगर कुछ बचता है तो उसमें आप क्या कर सकते हो? सदका तो खैरात और सखावत कर सकते हो। और ये उसूल मगर तुम नकली सदकात, इसलिए कहा गया कुलिल अफू, या रसूल इनसे कह दीजिए जरूरत से जो जायज है उसको आप अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक और मसला यह है, आत्म से इख्तिलाफ, सहाबा में भी इख्तिलाफ था ये कि तुम्हारे जरूरत से जो भी चीज है उसको घर में रखना नाजायज है। यानी तुम्हारे बिल्कुल चिना, क्योंकि यहां कहा गया कुल अफू, जरूरत से जो ज्यादा चीज है। तो हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी, जो दरवेश किस्म के सहाबी थे, वो क्या करते थे? तुम्हारे कारण जरूरत से ज्यादा जो भी चीज थी उसको वो अल्लाह के रास्ते में क्या कर देते थे? सदका। अलबत्ता सहाबा में से कुछ जमात ऐसी भी थी जो जरूरत के अलावा भी घर में चीजें रखते थे और कुछ सदका भी कर देते थे। इसीलिए बुशन तारीख में कि सहाबी, बल्कि सहाबा की अक्सरियत वो ऐसी थी कि जब वो इस दुनिया से कोच कर गए, उन्होंने अपने पीछे बड़ी बड़ी वरासतें छोड़ी। इसका मतलब है कि उन्होंने सब कुछ अल्लाह के रास्ते में सदका नहीं किया। अलबत्ता कभी कभी इस्लाम पर ऐसे मौके आते हैं जिस वक्त अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करना पड़ता है। इसकी मिसाल हमें ग़ज़वा तबूक में मिलती है। ये ग़ज़वा तबूक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम मुनादी, ये कैसा यमिस गायब सोनियो का, वो लाओ आप मस्जिद नबी में उसको जमा। बहरहाल उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक इंतहाई तम साथ थोड़ा बहुत नरम गुर्बत के साथ, हजरत उमर फारूक के पास बहुत ज्यादा माल था उस वक्त। आज दो उमर फारूक को बना, आज मैं आगे बढ़ूंगा किससे? अबू बकर सिद्दीक से। उनुक माल, तो अबू बकर सिद्दीक ने अपना नसब माल, ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने अपना नसब माल लाया। नसब थोड़ का के, तो इससे भी पता चलता है कि जरूरत के लिए भी घर में कुछ रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का सॉरी क्या है, बल्कि रवायत में शामिल क्रोस है आय, सब पातिश है आय, सॉरी क्या है आय। अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह पनीजे सोचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कूत ओनुत बोल नसब हाज ओन मई। हजरत अबू बकर सिद्दीक का माने कूता ओन दबे यहां से के, मगर रसूलुल्लाह ने आज सवाल ही बदल दिया। आज बदलो रसूलुल्लाह ने सवाल ही, क्योंकि सिद्दीक तो सिद्दीक ही है, सोच बढ़ गए नंबर 1 पे। बाहर रसूलुल्लाह ने आज सवाल किया, दबनस उमर क्या थोद गए, सवाल बढ़ जाना। तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने नसब हाज थोन गए। अबू बकर सिद्दीक क्या थोद गए? दबनस या रसूल अल्लाह, बस अल्लाह को घर रखा, बाकी सॉरी कैसा गाय वो सॉस में चंगेज पहुंच। हालांकि काम था वो माल किससे? हजरत उमर फारूक ने होता काम, मगर सवाल इस तरह से रसूलुल्लाह ने किया, इससे पता चला कि उन्होंने सब कुछ लाया था। और पीछे शायर मोहम्मद कि बुलबुल को फूल बस, वो कुछ है ना, परवाने को है शम्मा और बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए अल्लाह और उसका रसूल बस। तो बहरहाल हजरत उमर फारूक पशेमान शर्मिंदा पानी जाए कि नसब थोन तोड़ गए, उसने तो कुछ भी नहीं घर में रखा। तो इससे दो बातों पर यह नजर या वाक़ा से दो चीजों पर रोशनी पे। हजरत उमर फारूक के उस वतीरे से या उसके तरीके से पता चलता है कि घर के लिए भी कुछ रखना चाहिए और इसकी इजाजत भी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के तरीके से पता चलता है
कि जो तवक्कुल के आला मायार पर फाइज हो, यमिस खुदाइस पर युक्त तवक्कुल आए, जो सिद्दीक के दर्जे पर हो या तवक्कुल के अजीम मर्तबे पर आए, वो अगर पूरा अपना माल भी अल्लाह के रास्ते में लुटाए उसके लिए इजाजत है। मगर आम इंसानों के लिए ये इजाजत नहीं है। उनको इजाजत है कि पहले अपने घर बार का, अपने अहल अयाल का और जरूरियात का ख्याल रखे और फिर अल्लाह के रास्ते में। इसीलिए सो हदीस वाले में और कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बेहतरीन साथ कुछ सो जिससे इंसान फक्र फाका में मुब्तला ना हो जाए बल्कि गनी ही रहे, यानी तमिस पे पानस ब्रोके लुकन ब्रोके अथ पढ़ावे, ऐसे सदकात और खैरात से रसूलुल्लाह ने मना किया है। यानी सो साथ को ये इंसान क्या हुए बाकिन अतदार, तो कहा गया कुल अफू जरूरत से जो ज्यादा है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह ताला फरमाता ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला अपनी आयात को खोल खोल कर बयान करता है, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम इन अहकामात को इन पर गौर व फिक्र करो। ये कुरान बुनियादी मकसद कि कुरान यम ते आयात अस ब्रोह थाए असल में वो मुसलमानों के सामने किसका रास्ता खोलता है, किसका दरवाजा खोलता है, तफक्कुर। बार बार मुसलमान ताकीद कर लअल्लकुम ततफक्करून, लअल्लकुम ततफक्करून, इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्द, ताकि लास्ट पर क्या ततफक्कुर, यानी ताकि आप इन आयात पर गौर फिक्र करो। पच आयत फिर दुनिया वाला आखिरत, ताकि तुम दुनिया और आखिरत के बारे में सोच लिया करो। ये इसी आयत का टुकड़ा असल में है, मगर छी ब्योन आयत वो ये है कि यानी ये साथ अल्लाह ताला से वाति में खर्च ऐसे कर, दुनिया का भी ख्याल रखना और आखिरत का भी, यानी अपनी दुनियावी जरूरियात उनको भी मलहूज़ नजर रखना और आखिरत भी उसका भी ख्याल रखना। यानी यूता बखील गश्ती इंसान बन के आखिरत के लिए कुछ नहीं रखे और इतना हाथ को फैलाए बिना कि उसको फक्र फाका और इस पे लुकन रोकने क्या दारम अतदार। तो इस्लाम हमें एतदाल की तालीम देता है कि ये इन्फाक करो, एतदाल सान इन्फाक कर, यानी यूता ज्यादा इन्फाक तन कि पन फराइज यम तुम गन बशित, अपने अहल अयाल पर खर्च करना फर्ज है, तुम गन बशित, अपने आप पर खर्च करना यह फर्ज है, सह बशित। हम खर्च करते जाए यम सात पान अयाल पर खर्च कर नौबत आए तम सात पे लुकन मांगन, इस बात की तरगीब इस्लाम ने नहीं दी है। मगर सीधी फरमान फिर दुनिया वाला आखिरत, मगर इतना बखील और कंजूस भी नहीं होना चाहिए कि मौका भी गनीमत है, पैसे भी हैं मगर आखिरत की कोई तलब नहीं है। बल्कि अकिस रवायत में आमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पन्न वायसन खातिर मथयु माल तम त्यूता कि आपकी आखिरत ही तबाह हो जाए। यानी वारिस का माल जो है वो तो आपका माल है ही नहीं, वो तो कौन सा माल है, वो तो वरासा में चला जाएगा। हदीस बल्कि ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि बंदा कहता रहता है माली माली, कि ये मेरा माल है मेरा माल है, हालांकि इसका तो कुछ नहीं है। जब ये मरेगा तो ये किनका हो जाएगा, इनके वरसा का। उसका तो माल सिर्फ वो है जो उसने खाया और हजम किया, युजन क्यों तो सुन सुन, और जो पहना उसको बोसीदा कर दिया, यानी कपड़े वपड़े इन पानी कर, और जो कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और उसको आगे कर दिया, यानी ये त्रेशिम सिन माल। और सबसे बड़ा माल वही है जो आखिरत में इसके काम आएगा। बहरहाल ये एतदाल की राह और एतदाल का तरीका जो इस्लाम ने हमें सिखाया है। रब्बुल आलमीन दीन ऐसी यमन आयातन पर अमल करने तौफीक। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।